Welcome once again in this video, dear students. Today I'm going to start your new chapter, parts and wholes. Basically, the name of parts and whole is fraction. In this chapter, we learn the kind of fractions like fraction, unlike fraction, unit fractions, equivalent fractions, mixed fractions, proper fraction, improper fraction, and along with we will learn how to add fractions, subtraction of fraction, division of fractions, and multiplication of fraction. Uh, Through this chapter, you will able to solve such kind of questions. So, without wasting a moment, let's start. Uh, this is our chapter parts and wholes. In previous classes, you have learned about a little bit learned about this chapter parts and wholes. What is parts and what is whole? Suppose I have a potato like this. Suppose it is a one potato and I want to make part. This is called whole. Whole is one. Whole is one. And if I'm cutting like this, in this way, we have two part of this one potato. This is first part, second part. Then we will write this portion in mathematical way, whole, and it is part. तो जब इसको लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/2. दिस इज 1/2 and this is 1/2. And you can divide one thing in many parts, in unlimited parts, right? You can divide this potato in 8 parts, 7 parts, 5 parts, 5 equal part, 7 equal parts. So this way you can define the fraction. This is called fraction, right? And in fraction, the name of whole is numerator and the name of part is denominator. It is numerator and it is denominator, right? In this way we get a fraction. Fraction has numerator and denominator. Now these are the part of fraction. First numerator, second denominator. Numerator, what is numerator? Gives the idea of part chosen. तो जितने पार्ट आपने लिए हैं वो आपका न्यूमरेटर होगा. एंड डिनोमिनेटर गिव द आइडिया ऑफ टोटल पार्ट्स. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके, ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर होगा. द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेपरेटेड बाय डिवाइडिंग लाइन. तो आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं? n/d, वेयर n is numerator and d is denominator, and this line is dividing line. Now type of fraction. First type of fraction is like fraction. Fraction having same denominator. Example 1/15, 2/15, 3/15. That means the denominator is same. Where the denominator is same, these fractions are called like fraction. And the second is unlike fraction. The fraction having different denominators. Example 2/7, 3/8 and 5/9. You can see here every denominator is different. Denominators are 7, 8 and 9 and all are not like, so it's called unlike fraction. The third is unit fraction. The fraction having one as numerator. जिसमें one numerator होता है और denominator is not considered, तो वो क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर 1 होगा. द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. इट इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. सपोज फॉर एग्जांपल 2/5, 3/7 and 5/9. what you can see here? Here numerator is less than denominator, so द फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उस फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. द फिफ्थ काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल देन द डिनोमिनेटर.
जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो उस केस में क्या होता है कि ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. नाउ 6 kind of fraction is mixed fraction. Fraction mixed with whole number and proper fraction. Suppose for example 1 whole 2/5, 2 whole 5/9, 5 whole 6/10. So this is 1/2 whole 1 whole 2/5. 1 is whole number और इंटीजर, राइट. ये होल नंबर है या इंटीजर है और यहाँ पर आपका ये जो बाद का पार्ट है वो फ्रैक्शन है, तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बिकॉज होल नंबर एंड प्लस फ्रैक्शन. तो होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा. एंड द लास्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट मीन्स सेम वैसे ही फ्रैक्शन. सपोज आई एम हैविंग ए फ्रैक्शन 2/3. देन इफ आई वांट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देना है. आई विल गेट 4/6. इट इज इक्विवेलेंट. व्हाई इट इज इक्विवेलेंट? बिकॉज आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट द सेम नंबर. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो यही नंबर आ गया. इक्विवेलेंट यानी कि ये दोनों बराबर हैं. दिखने में आपको अलग अलग लग रही है, ये 4/6 है, ये 2/3 है, बट जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही नंबर फ्रैक्शन मिलेगा. तो वो फ्रैक्शन कोई भी हो सकती है. आप 3 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो यू कैन गेट मैनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ सिंगल फ्रैक्शन, राइट. तो इस तरह से आप इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. अब यहाँ भी आपको कई तरह के फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है. फर्स्ट हम लेते हैं लाइक फ्रैक्शन. 2 लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं? सपोज 1/8 एंड 5/8. These both fraction are like because the numerator denominator is same. तो आपने क्या करना है, केवल आपने न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और 8 को आपने ऐसे लिख देना है एक बार, ठीक है. 2 8 हैं तो एक ही बार क्यों? इट इज अ एलसीएम एक्चुअली. इट विल बिकम 6/8. फिर इसको लोएस्ट फॉर्म रिड्यूसिबल फॉर्म में लाएंगे तो 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 2 4 जा. जब भी आप कैंसिल करेंगे तो सेम नंबर से कैंसिल होना चाहिए, क्यों? बिकॉज वो उसका क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है. तो उससे आप जो है मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसे में, अब ये जो है कैंसिल नहीं हो सकता है 3 और 4. इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जब भी आप फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो आपकी जो फ्रैक्शन आनी चाहिए कैसी आनी चाहिए, प्रॉपर आनी चाहिए, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो. अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. इफ आई एम हैविंग 3 फ्रैक्शंस एंड एडिंग them, then you know these all are like fraction. You write 9 like this and now add 1 plus 2 plus 3. 3 2 ja 6, 3 3 ja 9. Finally you will get 2/3. It is a proper fraction, so it is your answer. It is not like fraction, it is unlike fraction because and proper fraction. It is proper fraction, it is not like fraction, and we have different denominators here. So the first step, we will take LCM of 4 5 and 6. 4 5 and 6 like this. 2 2 are 4, 5 2 3 are 6, 2 1 ja 5 and 3. Both are prime numbers, so the LCM will be 2 into 2 into 5 into 3. LCM is 60. So we will draw a line like this. It is dividing line and 60. 60 और LCM. अब क्या करेंगे, 4 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स. तो ये 15 यहाँ पर लिख देंगे एंड मल्टीप्लाई दिस बाय दिस वन. नाउ अगेन प्लस, फिर इसके नाउ द टर्न ऑफ 5 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 12 टाइम डिवाइड होगा, 12 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे,
सिमिलरली 6 को 6 में 60 में 60 का डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन इज 10 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 1 जा 15, 12 1 जा 12, 10 1 जा 10 अपॉन 60। Finally, we get 37 upon 60, and you can check is it proper or not. It is proper because numerator is less than denominator. If it is reducible, अगर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करेंगे, अगर नहीं, अगर कैंसिल प्राइम नंबर है या आपस में को प्राइम है तो ये जो है कैंसिल नहीं होंगे, तो इनको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इट इज योर आंसर। एडिशन ऑफ होल नंबर्स एंड फ्रैक्शन, इट इज होल नंबर, इट इज फ्रैक्शन। तो इनको कैसे ऐड करेंगे? वी हैव टू वे टू सॉल्व। एट फर्स्ट वी कैन राइट दिस 7 एज 7 अपॉन 1। फ्रैक्शन के फॉर्म में किसी भी नंबर को अगर आप लिखना है तो उसको डिनोमिनेटर को आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, उससे उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ बोथ आर इन फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म। नाउ वी कैन टेक LCM of 1 and 4, it will become 4। तो 1 4 जार, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को, 4 1 जार, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, 28 प्लस 3 अपॉन 4, 31 upon 4। Now we can see it is not proper fraction because the numerator is greater than denominator, so we will divide this like this, 4 divided by 31, 3। तो उसको लिखने का तरीका क्या है? जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? जितनी बार डिवाइड हुआ क्वेश्चन को यहाँ होल नंबर में लिखेंगे, उसके बाद आप डिवाइडिंग लाइन, उसके बाद जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे, उसके बाद 4। दैट मीन्स क्या है? कोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर, QRD। इस तरह से आपने लिखना है, पहले ये लिखना है, फिर ये 7 और 3.4। इट इज़ आवर आंसर। क्योंकि ये कट भी नहीं हो रहा है तो उसको, या प्रॉपर भी नहीं है तो इसको प्रॉपर चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे इस तरह से। ये सब जगह लागू होगा, सब जगह ऐसा ही करेंगे। जहाँ पर भी ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं आएगा, जहाँ भी इम्प्रॉपर होगा तो वहाँ पर इसको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ भी करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास है तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे तो इसका LCM 11 आ जाएगा। 11 1 जा 11, 1 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 11 जा 11 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 प्लस 22 अपॉन 11, 28 अपॉन 11। तो ये आपस में कैंसिल नहीं होते किसी भी नंबर से, तो फिर डिवाइड करेंगे, 11 से 28 में डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, 6। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 होल 6 अपॉन 11। तो ये आपका आंसर होगा। और एक शॉर्टेस्ट वे क्या होता है, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है 2 प्लस 6 अपॉन 11 ऐसा लिखा है, तो आप सीधे सीधे 11 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 2 जा 22 प्लस 6 कर दीजिए अपॉन 11। बस ऐसे भी जो है, इट इज़ द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 28 अपॉन 11, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें ये ऐड कर देना, ठीक है। तो ऐसे भी इस तरह के होल नंबर एंड फ्रैक्शन के जो एडिशन है ऐसे भी होते हैं, और जो एक्चुअल मेथड है वो ऐसे आएगा, और शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं। So now this is all about the addition of fraction, and in next video we will learn how to add mixed fraction, right? Till then, take care and have a nice day.